Welcome, my dear students, and today we are going to solve some MCQs for rational numbers. And first question goes like this: Associative property is not followed in. Actually, associative property is followed by all these types of number. ये भी फॉलो करते हैं, ये भी फॉलो करते हैं, होल नंबर भी फॉलो करते हैं, और हमारे नेचुरल नंबर्स दे विल ऑल्सो फॉलो नेचुरल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? इफ़ वी हैव गॉट थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, एंड इफ वी कैन ऐड लाइक दिस, हम दो नंबर को देखिए ऐसे ऐड करते हैं, और वी कैन ऐड लाइक दिस. You can check at your home. If we add a plus b first and then we add c, the result in both the cases are same. So this is property is shown by both these types of number in case of addition and multiplication. Addition and multiplication मतलब addition की बात कर रहे होते हैं और multiplication की बात कर रहे होते हैं, तो these numbers will show associative property. But in case of subtraction and division, this property will not hold. Okay, will not hold. Okay, so the question is little bit not right. Now next question is the identity for the addition of rational numbers. Okay, what is the identity for addition of rational numbers? So obviously this is 0. 0 is the additive identity for natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. So answer is 0. Is the multiplicative identity again 1. यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0. When we multiply any number with 1, we will get the same number. Okay, so this is multiplicative identity. Similarly, if we add 0, then we get the same quantity. अगर हम 0 किसी में ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? Same number. So that's why this is a additive identity and this is multiplicative identity. Now we are talking about the additive inverse. Additive inverse मतलब if we talk about the additive inverse, यहाँ पे हम इसमें क्या ऐड कर दें कि we will get 0. We will get what? We will get 0. So obviously option C is right. Okay. Now question 6. The number दो नंबर्स है हमारे पास जिनके रेसिप्रोकल क्या है, वो नंबर खुद है. रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. ये लिखना इज नॉट राइट. ये लिखना राइट नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू द 1/2. बट रेसिप्रोकल ऑफ 2 इक्वल टू 1/2. ओके, सो अगर हम 1 का रेसिप्रोकल लेते हैं और -1 का रेसिप्रोकल लेते हैं, देन वी कैन से दीज नंबर्स हैव गॉट देयर ओन रेसिप्रोकल. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज सिमिलरली, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज, okay, the product of two rational number is always, the product of two rational number is always rational number. You can check by taking any examples of rational numbers. आप किसी भी को भी लेके आप चेक कर सकते हैं. Now we will solve for this. So हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस साइन हो गया, मतलब सारे प्लस के हैं. नाउ 0 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 तो होता ही नहीं है. नाउ वी विल कैंसिल आउट. 7 1 जा 7 2 जा, ये हमने काट दिया, ठीक, 7 को काटा. 4 1 जा 4 4 जा, ये भी हमारा कट गया, ठीक. 5 से ये कट गया 3 टाइम्स, और 3 से 9 बन के कट गया. क्या बचा मेरे पास? 4 इज द आंसर. 4 है क्या? 4 4 4 4 4. आई थिंक वी हैव डन. नो, वी लेफ्ट विथ, यहाँ पे 2 भी बचा हुआ है. 2 1 जा एंड 2 2 जा. सो आंसर इज व्हाट? 1/2. दिस इज द राइट आंसर. यू कैन कट बाई
योर सेल्फ। ओके, नाउ द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स। सो हम लोगों को सम करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम इज व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम 48 आएगा, एलसीएम 48 आएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर नोइंग द एलसीएम। नाउ 48 को भी डिवाइड करेंगे 63 से, आंसर आएगा 6। when we divide 48 by 16, what we'll get 3, and 3 is multiplied by 5, that is 15. Okay, now when we divide 48 by 12, we will get 4, and 4 multiplied by 28, that is what, 28. So answer will be 13 by 48. Answer will be 13 by 48. So which is our right answer? This is our right answer. Okay, what number should be added? इससे क्या ऐड किया जाए, इससे क्या ऐड किया जाए, इससे ये ऐड कर दिया जाए। So what we will get? We will get this. इसमें 7/12 में ये क्या ऐड कर दिया जाए, ये ऐड कर दिया जाए, तो what we will get 4/15. So what is the value of this? This can be calculated when we subtract 4/15 और 7/12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम दिस टाइम विल बी 60, एलसीएम 60 आएगा। डिवाइड किया 60 को 15 से डिवाइड किया, 4 4 4 जा 16 माइनस 5 35 35 कैसे आया, 60 को हमने 12 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 7 जा 35। अब जब हमने इसको माइनस किया, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, आंसर इज दिस, you can see. Now next question, the reciprocal of positive rational number is positive, negative number is negative. क्या होता है, अगर 2 है तो 1/2 रेसिप्रोकल होगा, -2 है तो 1/2 बट विद माइनस साइन। ओके, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस, इससे क्या घटाया जाए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या घटाया जाए, इस नंबर में से क्या घटाया जाए, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा कि मतलब ये 2 में हम क्या ऐड कर देंगे, 3/5। कैसे भाई, ये नंबर इसमें ऐड किया इक्वल टू -2 है, देखो, इज इट ओके, नो इट इज नॉट ओके। 3 - 3/5 में से क्या घटाया जाए, तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 3/5 + 2। तो आंसर 10 हो जाएगा और आंसर आएगा 7/5, आंसर आएगा 7/5। ओके, ये आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है। तो इन ऑर्डर टू मेक द ग्रेटर, फर्स्ट वी मेक द एलसीएम सेम। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों की बात, इसको अगर मैं 14 बनाऊं, देखो सारे नंबर नेगेटिव हैं, सारे नंबर नेगेटिव हैं, तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इसमें अगर 14 बनाता हूं, तो इसको 14 बनाता हूं, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई 5/7 को मैंने अगर 14 बनाया, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा -10, और -10 तो छोटा हो जाएगा, जबकि 9 बड़ा है, तो ये तो छोटा हो गया। अब मैं 28 बनाऊँ इसको अगर, तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। इसका मतलब भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 28, और 9 की जगह क्या हो जाएगा 18, और ये माइनस साइन ऊपर आएगा, -18। -18 छोटा है कि -11, -18 छोटा है, ये भी ख़त्म हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, सो व्हाट वी कैन से, एलसीएम सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 58, ये आएगा 58, और ये आएगा 33, ये भी बड़ा हो जाएगा। सो विच आंसर इज राइट, विच आंसर इज राइट, दिस इज द
अच्छा, एक तरीका ये हो गया, दिस इज द अप्रोच फॉर सॉल्विंग व्हाट ऑब्जेक्टिव आंसर। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। पहले सभी का आप एलसीएम क्या बना लेंगे, 84, सभी का एलसीएम 84 बना लेंगे। फर्स्ट यू कैन मेक द एलसीएम 84 एंड आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर। बट मैंने कैसे कंपेयर किया है, दो दो को लेके कंपेयर किया है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो मैं सबका एलसीएम क्या बनाऊंगा, सबका एलसीएम यहाँ क्या बन सकता है 48, सबका एलसीएम 48 बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबका एलसीएम 48 बन सकता है, ठीक है। जब 48 एलसीएम बनाया तो मैंने यहाँ भी 4 का मल्टी, देखो सबसे पहले सारे माइनस है तो हम ऐसे लगा नहीं सकते, अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मैं 48 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -15, -15। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26। यहाँ पे मुझे 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 36। यहाँ मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 28। सारे माइनस के हैं, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, जो सबसे बड़ा हुआ। जो सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे छोटा होगा भाई। अगर मैं एलसीएम अगर सबका 48 बनाऊं तो मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सबका एलसीएम 48 आ जाएगा। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट 36 बिकॉज विद नेगेटिव साइन। तो ये सबसे छोटा हमारा हो गया। कौन सा आंसर हो गया मेरा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। नाउ फिफ्थ की बात करें, एलसीएम बराबर करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 60। एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 60। अच्छा, इसका 5 3 5 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। अब मैं जब इसको करूँगा 60 से 3 को डिवाइड करूँगा 20 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरे पास 40। आफ्टर दैट 12 4 जा 48 बट विद माइनस साइन। आप ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 4 ये आएगा मेरे पास 28 प्लस का 28 और ये यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का 33। सो आंसर विल बी व्हाट, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस कट जाएंगे तो आंसर मेरे पास आएगा माइनस व्हाट, माइनस, ठीक है, ये आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक ये 30 में एक ज़ीरो लगाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा, फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद ये करना शुरू करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, आंसर शुड बी दिस वन। ओके, नाउ 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर, देखो ये तो 1.5 होता है, नहीं हो सकता, ये 1.3 होता नहीं हो सकता, ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। ये इसका अगर आप फील करोगे तो ये 3.5 आ रहा है, तो ये इसके बीच में आंसर होगा। ओके, रैशनल नंबर इसमें अगर बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है हमारे पास 3 और 4। तो ये तो देखो बेटा, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 से ज़्यादा बैठेगा। ये 0.4, ये 0.3, ये 0.7, ये 3/5 है, कैसे आ सकता है। अब आप इसको अगर आप 10 से सारे डिनोमिनेटर 10 बनाओ तो ये बनेगा मेरे पास 6/10। अगर मैंने इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा। अब आप देख सकते हो क्या 3 इनके बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। क्या 4 लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर इज व्हाट, दिस इज द आंसर। ओके, अब सिमिलरली रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो अगर रैशनल नंबर दिस बिटवीन क्या हो सकता है, अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लूँ, ये 4 हो गया तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो क्या आ सकता है इसके बीच में, कौन सा आ सकता है 1/4, ये तो 2 है, 1 तो 1/4 तो यहाँ पे रह जाएगा, बीच में नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद
4/3, तो ये तो 1 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2/5 ये हो सकते हैं, 0.8 और ये। अच्छा, अगर मैं इसको 8 बनाता हूँ, 8 करता हूँ, तो ये कितना बनेगा? देखो, अगर मैं इसको 8 बनाता हूँ तो ये मेरे पास 8 हो गया, और ये क्या हो गया? 4। और इसको 8 बनाता हूँ तो ये हो गया मेरे पास 6/8। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट? क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा 40/3। नॉन ऑफ दिस, ओके, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइंड द एक्स। एक्स क्या हो सकता है? कैन यू से? एक्स इज नॉन ऑफ दिस। वाई? देखो, एक्स इस तरफ जाएगा, एक्स इस तरफ जाएगा, 8 इस तरफ जाएगा। नॉन ऑफ दिस, सॉरी, नॉन ऑफ दिस नॉट राइट आंसर, सॉरी फॉर दैट। एक्स इधर जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40, और 40 फिर माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, तो आंसर इज व्हाट? -40। सॉरी, अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स माइनस के साथ इक्वल टू 8 इंटू 5, 40 हुआ, और माइनस ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय व्हाट? -3। अब आप काट के देखो, ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, -14 इज द आंसर। इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ये तो मैंने पूरा तरीका बता दिया। इसको मैंने काटा, ये कट गया -5, ये कट गया -5, और -5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -15। इसमें अच्छा, -15 दोनों आंसर हैं, तो बी भी राइट करना पड़ेगा हमको, और सी भी राइट करना पड़ेगा। ओके, बोथ द केसेस -15 इज द आंसर। ओके ओके, नाउ यहाँ पे करें हम लोग, देखो, तो हमने इसको ऐसे काटा, 13 1 जा 13 5 जा, माइनस के साथ, 13 5 जा किसके साथ? माइनस के साथ। एक्स इधर चला गया और ये इधर आ गया, एक्स यहाँ चला गया और ये यहाँ पे आ गया, तो x इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज व्हाट? -30। ओके, अब हम लोग इसको करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा व्हाट? -4। इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब -24। इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं देखो, यहाँ इसको मैंने कट किया, कितना? -3। अब देखो, ये वाला -3, ये वाला -3 मल्टीप्लाई करेंगे, when माइनस एंड माइनस साइन विल गेट मल्टीप्लाई, द आंसर इज पॉजिटिव, सो x इक्वल टू व्हाट? 9। ओके, 9 बात करते हैं, तो देखो, -5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 से 3 कैंसिल आउट तो होगा, लेकिन माइनस साइन नीचे बच जाएगा, एंड दिस माइनस विल ट्रांसफर टू गेट व्हाट? -1। सो आंसर इज दिस। ओके, नाउ अगेन 3 से 3 कट गया, 2 1 जा और 2 5 जा, बट माइनस साइन इज देयर, so -1/5 is the answer. We all know when there is a plus sign, सॉरी डिवीजन साइन, तो डिवीजन साइन से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? डिवीजन साइन को सॉल्व करने के लिए डिवीजन को हमको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो डिवीजन के साथ वाला होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये होता है। नाउ व्हेन वी कट, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 -3 और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा मेरे पास -9। ये करते हैं अब क्वेश्चन, तो दोबारा से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। अब आप देख लो क्या आंसर आएगा, 4/3 आएगा, ये इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा? -1/6, -1/6। नाउ दिस इज नंबर लाइन। अब नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चन है क्या? PQR पॉइंट आपने देख लिए होंगे, PQRST इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है सारे, ठीक है, सारे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हैं।
सारे टी और क्या दे रखा है, डब्ल्यू टी, टी पी और पी क्यू, ये सब इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है। अच्छा, द रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है अच्छा ये भी देखना, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इनके बीच में 2 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5, कितने पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो जो W है वो आएगा मेरा 1/5, ये कितना आएगा 2/5, P आएगा मेरा 3/5, ये आएगा मेरा 4/5। सिमिलरली जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5/5, यही हमारा उल्टा जाएगा ये, ठीक है 5/5। अब देखो द रैशनल नंबर p इज रिप्रेजेंटेड बाय, p किससे रिप्रेजेंटेड है 3/5 से। रैशनल नंबर q इज रिप्रेजेंटेड बाय 4/5 से, क्योंकि हमने इसको 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमको सबसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और बीच में जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है वो इस तरीके से निकाले जाएंगे। मैंने वीडियो बना रखा है इसका, आपने देखा होगा। सिमिलरली या रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय r, r कहाँ है हमारा, r ये है, तो देखो अगर मैं ये देखूँ इसकी बात करूँ तो ये बिल्कुल बराबर दूरी पे है, तो -1/5 होना चाहिए ये। r इज वॉट, देखो 0 से इधर कहाँ जाएगा -1/5, सो नॉन ऑफ दीज। कैसे, देखो ये क्या होगा माइनस का 1/5, ठीक, ये क्या होगा माइनस का 2/5। सिमिलरली s क्या होगा मेरा माइनस का 3/5, ठीक है। ऐसे अब आगे देख लो, तो s किससे डिनोट किया हमने माइनस का 3/5, और उसके बाद t कौन सा पॉइंट है, t इज 2/5। अच्छा, रैशनल नंबर u, रैशनल नंबर u कहाँ है, रैशनल नंबर u इज डिनोटेड बाय -4/5, -4/5। और रैशनल नंबर v, रैशनल नंबर कौन सा है, v रैशनल नंबर 1, v कौन सा है, देखते हैं रैशनल नंबर v इज -2/5, और w इज व्हाट, w इज व्हाट 1/5, ठीक है, w क्या है 1/5, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट जिसको काटने में 3/5 मिल जाए, नहीं सॉरी 6/5 मिल जाए, तो 6/5 किसको काटने में मिल सकता है, केवल इसको काटने पे, इसको आप 2 से काटो तो ये माइनस का 6 आएगा और ये 5 आएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। अच्छा, अब हमको मतलब इक्वलिटी देखनी है इसमें। अगर इक्वलिटी देखनी है तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर, तो अगर मैं इसका अगर एलसीएम सेम करूँगा और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 15/21, और ये मेरे पास अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 14/21। अच्छा, सबसे पहली बात ये हमने करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज एलसीएम लेके हम लोग निकालते तो देखेंगे -15 जो है 14 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का एलसीएम सेम करेंगे, तो यहाँ इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 का। तो जब ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -28/35, और ये हो जाएगा -25/35, ठीक है। तो ये तो -28 है और ये -25 है, तो कौन सा बड़ा हुआ,
-25 वाला बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, इसको 16 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, तो ये तो इक्वल हो गया। देखो आप, जब इसको 16 बनाएंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये साइन ऊपर आ जाएगा ऐसे वाला, ये साइन यहाँ से कट के ऊपर आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली ये भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। हमने किससे इसको कट किया, किससे कट किया, 2 से, 2 से कट किया तो कितना हो गया 9/24, 9/24, सो दिस इज द आंसर 9/24। अच्छा, क्या मैं इसको और कट कर सकता हूँ, 3/8 लिख सकता हूँ, हाँ ये, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कौन सी है, सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे छोटी फॉर्म होती है। तो आंसर दोनों राइट हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि द आंसर इज दैट विच इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ रिराइट द रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, दिस इज द आंसर, बिकॉज वी कैन नॉट कट फर्दर ऑल्दो ऑल द नंबर्स आर सेम, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म किससे हम लोग 4 से कट करेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 18 आएगा, लेकिन विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, 4 से कट किया हमने। अच्छा, अब पैटर्न फॉलो हो रहा है, -9, -6, -3, -6, -9, -12, -15, -15 किस में है, इसमें है, और उसके नीचे क्या है 5, 10, 15, 20, 25, दैट इज दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, यहाँ पे -4/16, -1, -12, माइनस, अब क्या आएगा, कौन सा पैटर्न आएगा, यस, दिस इज द नॉट, दिस इज नॉट द पैटर्न। -1 था, -2, -1 के बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सो विच इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। -5 मतलब 5/-30, ओके, दिस इज द राइट पैटर्न। अच्छा, ओके, इसमें क्या आएगा हमारा, -35 होना चाहिए, ठीक, तीनों में -35 है, ऊपर क्या होना चाहिए 5, यस, तो विच इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसमें क्या आना चाहिए, -1, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, अब तो 8 आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का, तो 8 पॉजिटिव का है और ऊपर -1 भी है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ दिस सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग इसको 9 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 9 से सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो नहीं, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से इसको डिवीजन किया तो -3/2, -3/2,